A very good morning, dear students. Today we are going to start our lesson number 1.4, that is the King's Choice. So, all of you take out your English textbook and take out your lesson number 1.4. Okay, there are some meanings: fierce, King's Court, swift and foot, and opposed. So, I am going to read the lesson. Listen carefully. 1.4 The King's Choice. There was once a lion who was the king of the forest. In that story, there was a king, and the king was lion. He was the king of the forest. He was big and strong and very fierce. Fierce, the meaning of the fierce is angry and aggressive. The lion was very big, strong, and very angry and aggressive. All the other animals in the forest called him king. All the other animals, they live in the forest, they called him king. They brought him gifts from every corner of the forest. So all the animals, they brought him gifts from every corner of the forest. But the more the lion had, the more he wanted. But he was very greedy. The lion was very greedy. The lion wanted more and more. The king must have a coat, he said to himself one day. The king said that a king must have a coat, he said to himself one day. He called a fox to his side. There was another animal in the story, that is fox. So one day he called the fox and said, "You are known to be wise and clever." He said to the fox that, "You are known to be wise and clever creature, fox." Said the lion, "I want to be my advisor." The lion said that, "You are," that means the fox. The fox was very wise and clever. That's why the fox was his advisor. तो एक दिन फॉक्स को बुलाता है लायन और बताता है कि तुम कैसे हो, वाइज एंड क्लेवर हो, इसीलिए आप मेरे क्या बनोगे, एडवाइजर बनोगे. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो. सो द फॉक्स सेड दैट, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट, योर मैजेस्टी. द लॉयन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड. द नेक्स्ट एनिमल इन दैट स्टोरी, द फर्स्ट इज द फॉक्स and the second one is leopard. So the lion called the leopard to his side and said, "You are known to be watchful." Watchful means protector. And swift of foot. Swift of foot means very quick in moving and running. So leopard had a quality of very quick in moving and running. I want to be my bodyguard. So he said that, "You are my bodyguard." Bodyguard means a person employed to protect somebody. "Thank you, your majesty," said the leopard, bowing low. The lion then called a vulture, the third animal in that lesson, that is vulture. The number one is fox. He was very clever. So he was the advisor of the lion. Second one, he was very fast. So that's why he was the bodyguard, strong. And the number third is vulture. You are a bird, vulture, and can fly high. You are my messenger. So fox is advisor, leopard is bodyguard, and the vulture is messenger. "Thank you, your majesty," said the vulture, bowing low. The fox, the vulture, and the leopard took an oath of loyalty to the king. The king promised to give them food and protection. The word is oath of loyalty. A formal promise to be loyal to somebody. It is the oath. उन्होंने क्या किया, शपथ लिया कि हम आपकी पूरी सेवा करेंगे. एंड दैट्स व्हाई द किंग प्रॉमिस गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन. तो किंग ने भी प्रॉमिस उनको किया कि मैं आपको
आपके जीने के लिए जो भी खाना लगेगा, आपको प्रोटेक्शन का काम है, वो मैं अपनी तरफ से करूँगा। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लॉयंस किंग। द 3 courtiers नेवर अपोज द किंग। वो उन्होंने कभी भी उनको अपोज नहीं किया। अपोज का मीनिंग होता है डिसएग्री विथ हिम। जो भी लॉयन उनको कहता था, ही ऑल द एनिमल्स दैट इज fox, leopard and vulture, these 3 courtiers obey him. Whenever he roared, they stood in awe. जब भी वो रोड करता था, अपनी आवाज निकालता था, वो जाग जाता था, सभी लोग उसके वेलकम के लिए तैयार हो जाते थे। Whenever he took a walk, they followed him. Whenever he took a walk in the forest, all these 3 animals followed him. When the lion king went hunting, they found the animals for him to kill. So when the lion king went to the forest for the hunting, what did they do? The animals for him, they found animals for him to kill. And after he had his meal, जब उसका पूरा खाना वो उसको मार के शिकार करके जब वो देते थे उसको, वो लॉयन क्या करता था, उस एनिमल्स को खाता था, और उसका खाना होने के बाद he left the remains for them, so they always had enough to eat. वो बचा हुआ जो भी होता था फ्लेश वो खाते थे। One day the vulture came back from a flight. एक बार क्या हुआ, वल्चर ऐसे घूम रहा था, तो घूमते घूमते वो फॉरेस्ट में आया। Your Majesty, have you ever eaten a camel? He asked the lion. What did he ask? He asked that, have you ever eaten a camel? क्या आपने कभी कैमल को खाया है? It is very tasty. I ate it once in the desert. एक बार मैं डेजर्ट गया था, तो डेजर्ट में मैंने क्या किया, कैमल को खाया था। क्या आपने कभी उसको टेस्ट किया है? It is very tasty. The lion had never seen a camel. But the lion had never seen a camel, but he liked to the idea of trying camel's meat. जो आइडिया वल्चर ने बताया था, उसका जो मैसेंजर था वल्चर, उसने जो बताया था कि आपको कैमल खाना है क्या, वो बहुत टेस्टी लगता है। बट लॉयन ने कभी कैमल को देखा नहीं था, बट इसकी जो आइडिया थी वो आइडिया उसको पसंद आ गई। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल? ही आस्क्ड द वल्चर दैट वेयर वी कैन गेट दैट कैमल। देयर इज डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर। आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे, इट लुक्ड बिग एंड फैट। जब मैं थोड़ा घूम रहा था, तो थोड़ी ही दूर के बाद एक डेजर्ट है, और डेजर्ट के बाद एक कैमल है जो बहुत फिट है, बिग है और फैट है। द लॉयन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स। अदर एडवाइजर्स में कौन बचे हैं आपके पास? लेपर्ड एंड फॉक्स। उनकी तरफ वो देख रहा था। दे वेर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड, ही वांटेड देयर ओपिनियन। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। लॉयन ने उनकी तरफ देखा और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश किया, उनको पूछने की कोशिश किया, बट दे डिड नॉट नो द desert, but they did not want to. The vultures seemed to be wiser than them, so that they said, since it was the vulture's idea, he should lead the way. अब उनका कहना था कि वल्चर ने ये अपने लिए पास प्रपोजल लाया है कि हम कैमल्स का मीट जो है वो खाने के लिए जा रहे हैं, कैमल्स की शिकार करने हम जा रहे हैं, तो इस जो हमारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को लीडिंग कौन करेगा? वो वल्चर करेगा। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन and his court started off on the camels hunt. अब सभी लोग जो कैमल्स के साथ कैमल की हंटिंग करने के लिए निकल गए, जिसमें फॉक्स, वल्चर, लेपर्ड और उनके साथ लॉयन। They reached at the edge of the desert easily. अब फॉरेस्ट को पार करते करते they reached at the edge of the desert. But after they left the shelter of the forest, the day became very hot. अब पहले पूरे पेड़ थे फॉरेस्ट में, अब फॉरेस्ट खत्म हो गया, तो जो शेड थी वो शेड खत्म हो गई, और अभी वो डेजर्ट के पास में पहुंच रहे थे। अब जो दिन था वो दिन कैसा था? इट इज वेरी बिकम हॉट। द सन शोन डाउन विद अ फायर हॉट रेज। बहुत ही समर सीजन उस वक्त चल रहा था। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। हरी अलोंग ही कॉल्ड, द कैमल्स इज नॉट फॉर ऑफ। वल्चर ऊपर से उड़ रहा था और उनको बता रहा था कि चलो और जल्दी जोर जोर से चलो, अभी हमारे जो कैमल है वो बहुत दूर नहीं है। बट द लॉयन कुड नॉट हरी एनी मोर। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पाव्स, ही कुड नॉट गो नो फर्दर। बट लॉयन कुड नॉट हरी एनी मोर बिकॉज द लॉयन वॉज वेरी टायर्ड।
बिकॉज द हॉट सैंड, डेजर्ट में आपको पता है सैंड होती है, और जो सैंड होती है वो सनरेज के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, और उसके कारण जिसके जो पंजे थे जिसके ऊपर वो लॉयन चल रहा था वो पूरी तरह से बर्न हो रहे थे, इसकी वजह से वो बहुत फास्ट नहीं चल पा रहा था। स्टॉप, ही शाउटेड टू द अदर्स, जो बाकी जो उसके एडवाइजर्स थे, मैसेंजर था और उनका जो बॉडीगार्ड था, तीनों कोर्टियर्स को उसने कहा स्टॉप, लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर ट्राई कैमल्स मीट। अब मेरे पाँव इतने बर्न हो चुके हैं कि मैं आगे चल नहीं सकता, अभी मुझे कहाँ पे जाना है, फॉरेस्ट में वापस जाना है, मैं कैमल्स का मीट नहीं खाऊंगा। द लॉयंस किंग्स एडवाइजर्स वेर फ्राइटन्ड, द फॉरेस्ट वाज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लॉयंस बैक, दे वेर वेरी फ्राइटन्ड। अब वो उनको डर लगने लगा कि इतने दूर आने के बाद हाउ कुड वी गो in the forest. Leopard wanted to run away. Leopard thought that he wanted to run away. The vulture wanted to watch and wait to and eat the lion later on. The vulture wanted to watch and wait to eat the lion later on. But the clever fox thought of a plan. The fox was very clever, so he thought of a plan. Off into the desert he ran, saying, I will bring some help. He ran in the desert and said, I will bring some help. After running for some time, the fox found the camel. He was running and running and running. After running for some time, he saw a camel. He found one camel. The camel was indeed surprised to see. Hurry up, friend camel, said the fox. Our king wants to at once. He said to the camel that you are my friend camel, our king wants to at once. आप मेरे साथ चलो, मैं हमारे जो किंग है वो आपको मिलना चाहते हैं। Your king, said the camel. Who is that? I do not know any king. The camel replied that, who is the king? I do not know any king. I only know my master. जो मेरा मास्टर है, जो मैं उसके ऑर्डर सुनता हूँ, जो मेरा मास्टर है मैं उसी को जानता हूँ, मैं किसी किंग को नहीं जानता। एंड आई ओनली नो माई मास्टर फॉर होम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। गुड्स मीन्स जो भी चीज़ें होती है वो कैमल के ऊपर रख के वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, मैं इतनी चीज़ सिर्फ जानता हूँ। आवर किंग द लॉयन हैज़ किल्ड योर मास्टर। अब यहाँ पे जो क्लेवर फॉक्स होता है वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बताता है कि आपका जो मास्टर है उसको हमारे लॉयन ने मार दिया है, एंड नाउ यू आर फ्री, अब आपके ऊपर किसी मास्टर का बर्डन नहीं है। एंड द लॉयन हैज इनवाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग। ही सेड दैट आवर किंग इनवाइटेड यू टू लिव विथ अस एट हिज कोर्ट एंड कम विथ मी। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vultures and the leopard were surprised. When he reached in that place, the vulture and the leopard was very surprised. Even the lion looked pleased in spite of his burnt paws. He was very tired. The lion was very tired. His paws was burned. But even then, the lion looked very pleased. The camel was presented to the king. He agreed to serve the lion in return for the home at his court. Get on the camel's back, your majesty, said the fox. We will return home. The fox said that, get on the camel's back. Camels के ऊपर हम अभी बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाओ और हम अभी फॉरेस्ट के तरफ चले जाते हैं। The lions at once jumped on the camel's back. His courtier, the fox, leopard, jumped up behind him, and with the vultures flying ahead as guide, they set off on the long journey back to the forest. अब जिस वे से वो डेजर्ट की तरफ गए थे और यहाँ पे अभी डेजर्ट में उनको कैमल मिला, कैमल के ऊपर बैठ के वो वापस अपने फॉरेस्ट में वापस आ रहे हैं। यहाँ पे कैमल्स के ऊपर लॉयन, लेपर्ड और फॉक्स और जो वल्चर है एज अ गाइड उनको रास्ता दिखा रहा है। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. अब ये सभी जो ट्रैवलर्स थे, जो
डेजर्ट में कैमल को ढूंढने गए थे, दे ऑल आर वेरी हंग्री. द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक्ड एट द कैमल. Then they looked at each other and smiled hungry smile. They had brought the camels for the king's dinner. Now it was the time for the feast. They thought that the camel is presenting for the dinner to the king. Friend camel, he said, I have to thank you for saving my life. You are welcome to live at my court as long as you like. I promise you my protection. But the shocking news is that the lion said that you saved my life because my paws very burning at the time and you saved my life. You are welcome to live at my court as long as you like. I promise you for the protection. लॉयन ने क्या कहा कि आपने क्या किया, मेरी जान बचाई है. जब मैं वहाँ पे हंगरी और मेरे जो पाव्स है वो पूरे जल रहे थे, उस वक्त आपने मुझे बिठा के वापस फॉरेस्ट में लाया. इसकी वजह से इसके बाद का जो आपका प्रोटेक्शन है, आपको अगर हमारे साथ रहना है तो आप हमारे साथ रह सकते हो. द लॉयंस कोर्टियर वेयर शॉक्ड. ये न्यूज़ सुन के कि ये जो प्रेजेंट था कैमल का, ये तो हमने खाने के लिए लाया था, लेकिन अभी लॉयन क्या बोल रहा है कि कैमल का प्रोटेक्शन मैं करूँगा. Had they not risked their lives so that he could try camel's meat, and the king wanted to let the camels live. उनको लग रहा था कि अगर कैमल नहीं मिला ये लॉयन हमें खा जाएगा, इसीलिए हमको कैमल को ही इसको खिलाना पड़ेगा. The courtiers were not pleased with the decision, yet they could do nothing. वो they were not happy, but they could not do nothing. Now the lion's paws were so badly blown that he could not go hunting. Because of the badly burned paws, he could not go to the hunting, but that did not keep him from growing very hungry indeed. But उसको ज़्यादा भूखा नहीं रह सकते हम lion को. Fox, leopard, vulture, he shouted, don't you see that I am ill and hungry? Go and get me some food. The lion said that, come here and get some food for me because I am ill and I am hungry. The courtiers had to obey the king, so out they went, but they did not go far. They sat down in a safe place and discussed what they could do. What did the courtiers? Obey his king, but they did not go far. उन्होंने लॉयन ने उनको कहा भेजा था कि कोई एक एनिमल पकड़ के लाओ बिकॉज मैं बहुत हंग्री हूँ. बट ये बहुत ज़्यादा दूर में जाते हुए एक जगह पे बैठ गए और वहाँ पे डिस्कस करने लगे कि अभी क्या किया जाए. I know, said the fox after a while, we shall make the camel ask to be eaten. हम कहते हैं कि ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे कि कैमल को लॉयन खा सकेगा. He told others of his plan. They all are agreed. So back they went to the king. अब उनका एक प्लान बन गया और वो प्लान क्या है वो हमको नेक्स्ट पता चलेगा. अब वो किंग के पास आए. He told first the vulture step forward. अब लॉयन वहाँ पे बैठा हुआ है, तीनों आ गए वहाँ पे और तीनों आने के बाद यहाँ पे लॉयन है और फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर इसके सामने आ गए विद कैमल. ठीक है. अब द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड एंड सेड, योर मैजेस्टी, वी हैव फाउंड नो फूड. वी आर गोइंग पार्ट बट we did not found any food, so we cannot let your majesty suffer. I am poor creature, eat me. He said that we did not found any food, so eat me. हम बहुत घूमे लेकिन मैं अपने राजा को भूखा नहीं रह सकता, इसीलिए आप मुझे खा सकते हो. किसने कहा? वल्चर ने कहा. At the end of the story, the fox pushed the vulture aside. I have more meat on it. अब ये जो फॉक्स था इसने इसको पीछे किया और खुद आगे गया और क्या कहा कि I have more meat on me. He cried, eat me, your majesty. मेरे पास मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लेश है, आप मुझे खाओ. Now the leopard rushed forward. अब जो लेपर्ड बचा था वो लेपर्ड आगे आया और उसने कहा, the leopard rushed forward. I am not much good, he cried, but I could make a meal for the किंग. लेपर्ड कहता है कि मैं ज़्यादा तो अच्छा नहीं हूँ बट
आप मुझे एज अ मीट खा सकते हो। तीनों ने अपनी अपनी इच्छा जो थी कि वल्चर बोल रहा है आप मुझे खाओ, फॉक्स कह रहा है आप मुझे खाओ, और फिर लेपर्ड भी कहता है आप मुझे खाओ। The camel listened to all these offers. He must do as much as thought. अब कैमल जो बाजू में खड़ा था वो भी ये सब चीज़ें सुन रहा था। अब इसको भी लगा कि मुझे तो जो प्रोटेक्शन दे रहा है उसको भूखा मैं नहीं रह सकता, इसीलिए ये भी आगे आ गए। Your Majesty, he said, I too am willing to give my life for you. I am willing to give my life for you. Please eat me instead of these old friends of yours. ये आपके बहुत ओल्ड फ्रेंड्स है, इसीलिए इनको ना खाते हुए आप मुझे खा लो। who will be more useful than I am. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मैं आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे खा सकते हो। ऐसे कैमल ने किंग को कहा। This was what the fox, leopard and the vulture were waiting for. और यही चीज़ लेपर्ड, फॉक्स और वल्चर वेट कर रहे थे कि कब ये कैमल कहता है कि आप मुझे खाओ। जो प्लान इनका था कि मैं पहले बोलूँगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर मैं बोलूँगा, हमारा सुन के ही कैमल कहेगा कि आप मुझे खाओ, और यही बात कैमल ने उनको बोल दिया। दे वर वेरी हैप्पी। दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल बट द लायन स्टॉप्ड हिम। जैसे ही उसने कहा कि मुझे खाओ, ये तीनों के तीनों उसके ऊपर उसको खाने के लिए टूट पड़े। एट द सेम टाइम द लायन सेड दैट स्टॉप, you all good and loyal subject. Lion said that you all are good and loyal. My heart is touched by your offers. वल्चर ने भी ऑफर किया, फॉक्स ने भी ऑफर किया, लेपर्ड ने भी ऑफर किया, कैमल ने भी ऑफर किया। आप सबके ऑफर से मैं बहुत ज़्यादा, मेरे हार्ट में बहुत आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ गई है। आई एक्सेप्ट देम ऑल। I shall eat you in the order in which while you offered yourself. ठीक है, आपकी जो इच्छा है कि मुझे पहले मैं वल्चर को खाऊंगा, फिर मैं फॉक्स को खाऊंगा, फिर मैं लेपर्ड को खाऊंगा, एंड एट द लास्ट I will eat camel. The vulture, the fox and the leopard were shocked. जब इन्होंने ये बात सुनी कि अभी लॉयन हमको ऑर्डरली खाने वाला है, कि पहले वल्चर ने बोला था, फिर फॉक्स ने बोला था, फिर लेपर्ड ने बोला था, अब ये सब चीज़ें सुन के दिस ऑल एनिमल्स आर वेरी शॉक्ड। अवे फ्लेव द वल्चर, उसी के साथ ये जो वल्चर है वो इधर उड़ गया। अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड, इधर ये लेपर्ड और फॉक्स वहाँ से भाग गए। दे वेयर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, इसके बाद से वो तीनों कभी भी इस फॉरेस्ट में नहीं दिखे। जैसे ही इसने कहा लॉयन ने कि मैं ऑर्डरली सबको खाने वाला हूँ, वल्चर यहाँ से भाग गया, फॉरेस्ट भी भाग गया, लॉयन ऑल्सो रैन अवे। द लॉयन लव्ड टू सी देम गो, और ये इसी से इसको समझ में आया, और ही सेड दैट ही टर्न टू द कैमल्स एंड सेड यू हैव बीन द लॉयल एंड गुड, यू आर द लॉयल पर्सन, यू आर द लॉयल एनिमल, एंड यू शॉल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे उस दुनिया में आप और मैं फ्रेंड रहूँगा, मैं आपको कभी भी नहीं खाऊंगा। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। द लॉयन थॉट टू बी हिमसेल्फ, टू बी द किंग गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, मॉरल क्या है स्टोरी का, टू बी किंग इज गुड but to be kind is better. एक किंग होना, किंग को बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, बट उसके मन में काइंड होना, किसी के प्रति उसको प्यार होना, हेल्प की भावना होना, वो बहुत अच्छी बात है। तो इट इज़ अ फोक टेल्स रिटोल्ड बाय शंकर। सो दिस इज योर lesson number 1.4, the king's choice. Meanings, once again, fierce, that means angry and aggressive. King's court, this is a term that describes for a king council. Swift and food, very quick in moving and running. Oath of loyalty, that means a formula of
a formal promise to be loyal to somebody, and the last is oppose means disagree with him. So here we have completed our lesson number 1.4, that is the king's choice. Thank you.